वी आर बाउंड बाय दैट, हमने उसके मुताबिक चलना है, हम तो नहीं कर सकते अनलेस इट इज डिक्लेयर्ड, अदरवाइज जब डिक्लेरेशन हो जाएगा तो फिर जी सही है। इस वक्त आप भी जो आर्गू करेंगे डीमिंग इट की पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फिर ही हो सकेगा, वरना ज़ाहिर है आप कहेंगे कि हम तो मानते नहीं, ये क्या डिक्लेरेशन और क्या फिर वो, तो ये बेंच भी उसी, मेरी गुजारिश यही है, ये मौजूदा बेंच भी उसी 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत बनी है और आप इस बेंच में आए हैं, उसी पर मैं आऊंगा ना। उसका मतलब ये कि और हामिद साहब अगर ये नहीं है, यू से दैट इट्स नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक नहीं है, तो व्हाई देन यू हैव चैलेंज दैट? आप समझते हैं तो इसलिए चैलेंज किया। Not part of the constitution if my submissions are accepted by this court. कोई तो वो unless court not cleared that. whether right or wrong, I'm subject. but that has not been suspended by this court. जी जी। तो फिलहाल तो है। आपने जब 26वीं तरमीम की वैलिडिटी के बारे में सुनना है, आपने 1 मिनट के लिए एक दफा फिर 21वीं 21st of October पे जाना है, क्योंकि that time it was 21st of October पे जाना है, क्योंकि that time it was passed. And in all such cases, whenever a part of the constitutional amendment is struck down, it is struck down from the very date when it was introduced to begin with. So that is what it is. For the time being, all I have to show before this honorable court that what is the effect of this amendment, and being effect of this amendment, does it affect the very basic features of the constitution? Not हामिद साहब वो मैरिज पे है, हामिद साहब इस वक्त जो है ना वो हम प्रीमेच्योर स्टेज पे जा रहे हैं। नहीं सर, अभी आप सिर्फ जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच के ऊपर इफ यू विल कन्फाइन योर आर्ग्यूमेंट्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूटिंग द फुल कोर्ट, दैट वुड बी बेटर, बिकॉज आपकी स्थिति में हम सुन रहे हैं वी आर नॉट हियरिंग इन मेन केस टुडे ना। तो आई होप basically टू दैट the primary arguments which will be there for your lordships on merit, which I am not going at, but just for the sake of submission that a full court may be constituted, I will only refer to those, not yet saying that how they are against the basic features. I will not argue that now. I'll argue that later. But I'm just showing that one of the basic features of the Constitution is the independence of judiciary. And what I am trying to submit here, by amending Article 175A, the independence of the judiciary has been adversely affected. So that's only to this extent I'm making. The other is that the separation of powers have been affected because under Article 191A, which is the product of the 26th Amendment, now appointment of judges or formation of benches, which was always the function of internal function of the Supreme Court. The Chief Justice, or later when that law was brought in, which made the committee of Chief Justice and 2 senior most judges, it was the function of internal function of the Supreme Court. For the first time in the history of Pakistan, a mechanism has been introduced through Article 191A by which the formation of benches have been taken away from the Chief Justice or for that matter. सारी बात देखिए फिर मैरिज पर जा नहीं, मैरिज पे नहीं जा रहा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, एक्चुअली बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन करते हैं। अब आपकी प्रेयर स्टैंड करने के लिए अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग 26th amendment, whether this case can be fixed before a 16-member bench as your prayer is, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से बता दें, ये होगी डायरेक्ट आपकी। जी जी, I'll show how this had to be done by a 16-member bench, or I would say before a full court of 16 judges in existence at the time of passing of the amendment. अब 2 कमिटीज हैं, उन्होंने प्रेरोगेटिव है उनका ऑटोमेटिक ट्रांसफर बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। अब फिक्सेशन दोनों कमिटीज का प्रेरोगेटिव है, तो उस कमेटी में जाना वो समझाते कहते हैं हम यहाँ से ज्यादा एट द मोस्ट वी कैन रेफर
committee. इसमें जो बात मैं अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि पहली दफा, that's why I'm pointing out 191A. I'm not reading the whole article. Shall read that. इसमें एक मैकेनिज्म दिया गया है, forming a certain judicial commission which are going to. सुप्रीम कोर्ट के मनाजिर आप बराह रास्त इस वक्त GNN की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। इस वक्त जो डिफेंस हैं वो अपने दलाइल पेश कर रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं वो इस वक्त केस की समाअत कर रहे हैं। ये अहम केस है जिसके हवाले से इस वक्त समाअत जारी है। इसमें जो जजेज़ हैं, मौजूद जजेज़, वो मुकालमा करते दिखाई दे रहे हैं और बराह रास्त फैसला किया गया था इस समाअत को नशर करने का और उसी तसलसल में ये समाअत है वो बराह रास्त नशर भी की जा रही है। इस वक्त जो दिफा है वो अपने दलाइल पेश कर रहे हैं और इस वक्त जो जजेज़ हैं वो उनसे मुकालमा भी करते दिखाई दे रहे हैं, जिसके मनाजिर आप GNN की स्क्रीन पर मुलाहिजा भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत जारी है। इस समाअत को बराह रास्त नशर करने की मंजूरी भी दी गई थी और इस वक्त वो केस की समाअत जारी है जिसमें डिफेंस जो है वो अपने दलाइल पेश कर रहे हैं और मौजूद जो जज हैं वो इस्तफसार करते दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत जारी है। कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त नशर की जा रही है और गुज़िश्ता रोज़ आईनी बेंच ने केस की लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त मंजूर की थी। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदूखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस आयशा मलिक बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस हसन अजहर, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अफ़गान और जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच में शामिल हैं और आज बेंच पर एतराज़ से मुतल्लिक़ दरख्वास्तों की समाअत हो रही है। बेंच ने फुल कोर्ट की तश्कील पर नोटिस भी जारी किए थे और उसी ये केस की समाअत आप बराह रास्त इस वक्त नशर होती GNN की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत इस वक्त जारी है। कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त नशर की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ आईनी बेंच ने केस की लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त मंजूर की थी और जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदूखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस आयशा मलिक बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस हसन अजहर, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अफ़गान और जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच में शामिल हैं। आज बेंच पर एतराज़ से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत होगी और बेंच ने फुल कोर्ट की तश्कील पर नोटिस भी जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत बराह रास्त नशर की जा रही है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वकील हामिद खान की जानिब से दलाइल जारी हैं। कहा गया 26वीं आईनी तरमीम सेनेट में गैर मामूली तरीके से लाई गई थी, पार्लियामेंट में रात के वक्त पास की गई। अगर फुल कोर्ट इस तरमीम को कलअदम करार दे तो ये पहले दिन से खत्म तस्वुर होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा जब तक 26वीं तरमीम कलअदम हो ना जाए तब तक तो आइन का हिस्सा है। इस वक्त आप दलाइल इस तरमीम को आइन का हिस्सा मानते हुए दें। जस्टिस जमाल मंदूखेल ने कहा आप इसी तरमीम के तहत बने बेंच के सामने आए हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने भी रिमार्क किए कि अभी तक इस तरमीम को मुअत्तल नहीं किया गया। तो नाज़रीन ये खबर है, ये समाअत है जिसका हवाला आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत इस वक्त जारी है 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक, जिसमें हामिद खान अपने दलाइल दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत बराह रास्त नशर की जा रही है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच समाअत करा है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील हामिद खान की जानिब से दलाइल जारी हैं। उन्होंने कहा 26वीं आईनी तरमीम सेनेट में गैर मामूली तरीके से लाई गई थी, पार्लियामेंट में रात के वक्त पास की गई। अगर फुल कोर्ट इस तरमीम को कलअदम करार दे तो ये पहले दिन से ख़त्म तस्वुर होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा जब तक 26वीं तरमीम कलअदम ना हो जाए तब तक तो आइन का हिस्सा है ना।